Hi dear students, welcome back to your English video. Today in this video I will be explaining grade 10 English first flight textbook chapter number 11 The Proposal, written by the famous Russian writer Anton Chekhov. So let's see the summary of this play. This is a play. Okay. It is one act play written by Russian story writer and dramatist Anton Chekhov in 1888-89. This play is about the tendency of rich families to hunt ties with other wealthy families to extend their estates by encouraging marriages that observe economic sense. तो इस प्ले का थीम ये है कि in the society we can see the rich families, they just put forward some marriage proposals and with another rich family, and actually they want to improve their status, their wealth, asset, everything through this marriage. Okay, so this is the the play about. In this play we can see the tendency of rich families to become more richer, okay, by marriage proposals and getting into tie with other wealthy families. Okay, so in this chapter we can see that Ivan Lamov, a wealthy neighbor of Stephen Chupkov, also wealthy, who seeks the hand of Chupkov's 25-year-old daughter Natalia. In this chapter, the main character is Ivan Lamov. He is a wealthy neighbor of Stephen Chupkov. Both are wealthy. Okay, and Chupkov has a daughter. Her name is Natalia, and Ivan has come to Chupkov's house to propose Natalia. Okay, all three are argumentative. See, the main problem or the main obstacle for marriage that we find in this play is that they are all quarrelsome, argumentative. हमेशा छोटे छोटे बातों पे पेटी इश्यूज लेकर आर्ग्यू करते हैं, एक दूसरे से आर्ग्यू करते हैं. दे आर्ग्यू ओवर पेटी इश्यूज. Okay, the proposal is on the verge of losing in the middle of all this quarreling. तो ये quarrel चल रही है. एक्चुअली जो proposal करने के लिए इवन आया था वो अभी बंद हो गया और quarreling चालू हो गया है. Okay, but the economic common sense ensures that the proposal is formed in any case. मगर economically उन्हें जो common sense है उसके बेस में ये proposal आगे बढ़ता है. That means they are moving on to marriage. Although the quarreling perhaps continue. Quarrel तो एक साइड में है, फिर भी proposal आगे बढ़ रही है. They are moving to get married. Okay, the curtain rises with Lamov entering his neighbor Chupkov's house in neatly dressed up attire. तो जब ये प्ले शुरू हो रही है तब हम देखते हैं लमोव उसके नाइबर चुपको के घर आया है, वेल ड्रेस्ड है. ओके, फॉर्मल ड्रेस में. Chupko in great curiosity to see him well dressed and ask him the occasion. तो चुपको बहुत ही सरप्राइज हो गया, उसके नाइबर बहुत ही फॉर्मल ड्रेस में उसके घर आया है. So he asked the reason. Okay, Lamov reveals that he had come for a desire. ओके, तो लमो बता देता है मैं मेरा एक विश बोलने के लिए यहाँ पे आया हूँ. चुपको अस्यूम्स दैट ही मस्ट हैव कम टू आस्क फॉर मनी विच ही डज नॉट वांट टू रिटर्न. तो चुपको ने ऐसा सोचा कि ये तो ज़रूर मेरे से पैसा मांगने के लिए, मुझसे पैसा बोरो करने के लिए यहाँ पे आया होगा. मैं तो एक्चुअली उसे देना ही नहीं चाहता. आफ्टर नोइंग दैट लमो हैड कम टू इन्वाइट चुपको's डॉटर नतालिया's हैंड इन मैरिज, चुपको लीव्स टू कॉल नतालिया. तो जब वो सुनता है कि लमो वहाँ पे एक मैरिज प्रपोजल लेकर आया है, अपनी बेटी और उसके शादी के प्रपोजल लेकर आया है, तो चुपको को बहुत अच्छा लगता है और वो बताता है कि मैं मेरी डॉटर को बुलाती हूँ. Lamov is a 35-year-old gentleman who suffers from palpitations and get upset very easily. तो Lamov 35 years का एक जेंटलमैन है और उसे है ना एक प्रॉब्लम है, पैल्पिटेशन का मतलब होता है शिवरिंग. ओके, और जल्दी वो अपसेट भी हो जाता है.
He thinks that it is the right age for him to marry and is happy that he is choosing Natalia. और वो ऐसा सोचता है कि उसको 35 ईयर्स हुई है तो ये ही करेक्ट टाइम है मैरिज का, और नतालिया तो एक अच्छी लड़की है, तो ही इज़ वेरी इम्प्रेस्ड ऑन हर ऑल्सो. ही बिलीव्स दैट नतालिया इज़ एन एवरेज लुकिंग एंड एन ऑनेस्ट केयर टेकर. तो वो ऐसा विश्वास करता है नतालिया एक एवरेज लुकिंग, अच्छी लुकिंग गर्ल है और ऑनेस्ट भी है, ऑनेस्ट केयर टेकर है, अच्छी तरह सब संभाल लेगी. ओके, ऑन Natalia's arrival, Lamo initiates the conversation of cordial terms of both families. तो नतालिया आती है लमो से मिलने के लिए और उन दोनों के बीच में अच्छी बातें, कॉर्डियल का मतलब है फ्रेंडली टर्म्स की बातें होती है. while continuing to speak about his land, he somehow mentioned Oxen Meadows which earlier was a dispute property but is now his. तो जब बातें हो रही है लैंड के बारे में तो लमो उसके ऑक्सन मेडोज़ के बारे में बातें करता है. एक्चुअली ये ऑक्सन मेडोज़ जो फील्ड और ऑक्स थे वो तो डिस्प्यूट का एक इश्यू था. पहले इनके एंसेस्टर्स के बीच में सब डिस्प्यूट्स हुए थे, मगर वो अभी लमो का है. नतालिया इज़ इन द परसेप्शन दैट ऑक्सन मेडोज़ बिलोंग्स टू हर फैमिली. मगर नतालिया ने ये मान के रखा कि वो ऑक्सन मेडोज़ है ना, वो उसके फैमिली के हैं. बोथ एंटर इनटू ए हीटेड डिस्कशन एंड एक्ट चाइल्डिशली एंड चुपकोस एंट्री मेड इट मोर हीटेड. तो ये बहुत ही हीटिंग डिस्कशन हो गया, दोनों आपस में क्वारल करने लगे, बहुत ही चाइल्डिश भी लग रहा था. तभी चुपको फादर भी आ गया और वो भी गुस्सा करने लगा लमो से. दे शाउट एंड स्क्रीम व्हाइल लमो सफर्स फ्रॉम एक्सट्रीम पैल्पिटेशन एंड नम फूड. वो इतना चिल्लाते हैं आपस में, एट लास्ट क्या होता है, लमो सफ़र्स फ्रॉम एक्सट्रीम पैल्पिटेशन. लमो को शिवरिंग होती है और उसका फूट नंब हो जाता है, वो हिल भी नहीं पाता है. दे थ्रो लमो आउट ऑफ द हाउस एंड कंटिन्यू अब्यूजिंग हिम. तो ये फादर और डॉटर चुपको और उसकी डॉटर नतालिया लमो को घर से बाहर कर देते हैं. While defaming him, Chupko accidentally reveals that he had a wedding proposal for Natalia. तो उसको अभी डिफेम कर रहे हैं, उससे उसका बुरा बोल रहे हैं फादर डॉटर. तो इसके बीचों बीच चुपको ने एक्सीडेंटली अननोइंगली उसने बोला कि नतालिया से शादी करने के लिए वो आया है, प्रपोजल लेकर आया है. विथ सरप्राइजेस नतालिया. ये सुनकर नतालिया बहुत ही सरप्राइज हो गई है. एंड शी सडनली रिग्रेट्स सेंडिंग हिम आउट. और अभी उसको रिग्रेट फील रही है, पश्चाताप फील रही है, इसीलिए क्योंकि उसने लमो को वहाँ से सेंड कर दिया था. शी टेल्स अ फादर टू ब्रिंग हिम बैक एंड चुपको बेन्स हिमसेल्फ फॉर बीइंग द फादर ऑफ द यंग डॉटर. तो देखो वो अपने पापा से बोलती है लमो को वापस बुलाने के लिए, और चुपको अपने आप को वो ऐसे ही बेन करता है. ओके, अपने आप को कर्स करता है कि मैं एक यंग डॉटर की फादर हो गया ऐसा. When Lamo returns, Natalia tries to deviate the topic by talking about shooting. तो जब लमो वापस आ जाता है, नतालिया ये टॉपिक, लैंड का टॉपिक बंद कर दिया उसने, और उसने शूटिंग के बारे में बातें करने लगी. लिटिल लेटर दे एंटर इनटू अ डिबेट ऑन देयर डॉग्स. कुछ ही देर बाद उनकी डिबेट होती है डॉग्स के बीच में. नतालिया स्ट्रांगली बिलीव्स दैट हर डॉग स्क्वीजर इज़ बेटर देन कंपैरिजन टू लमोस गस. तो लमो का गस एक डॉग है, वो ब्रीड का है, और नतालिया के डॉग का ब्रीड स्क्वीज़र है. तो नतालिया बताती है मेरी डॉग स्क्वीज़र आपके डॉग गस से भी अच्छा है. दे कंटिन्यू आर्ग्यूइंग अबाउट चुपकोस एंट्री द सीन ओनली टू फॉर्म थिंग्स वर्स अगेन. तो फिर से आर्ग्यूमेंट शुरू होती है ये डॉग के बारे में. फिर तब चुपको आ जाता है और बातें बहुत वर्स हो जाती हैं, बुरा और भी बुरा हो जाता है. एवरीवन गेट्स हाइपर एंड लमो फाइनली फॉल्स बिकॉज ऑफ पाल्पिटेशन. सब हाइपर हो गए, बहुत ही उनकी बीपी सब चढ़ गई, और लमो को क्या हुआ, बहुत ही शिवरिंग हो गया और वो गिर गया. इवन देन द कर्सिंग कंटिन्यूज व्हेन सडनली नतालिया नोटिस दैट ही इज़ अनकॉन्शियस. ओके, जब उनकी ये कर्सिंग कंटिन्यू हो रही है, नतालिया उसको लमो को बहुत ही बुरा वर्ड्स बताती है. बाय दैट टाइम ही बिकेम अनकॉन्शियस. लमो अनकॉन्शियस हो गया. एज दे फाइंड हिम अनएबल टू ड्रिंक वाटर, डिक्लेयर हिम डेड. तो जैसे ही वो पानी ही नहीं पीता है, तो ये फादर और डॉटर ने बता दिया कि वो मर गया है. आफ्टर अ वाइल लमो मूव्स अ बिट एंड दे गिव हिम सम वाटर टू ड्रिंक. ओके, तो थोड़ी देर बाद लमो हिलने लगता है और वो नतालिया उसको पानी देता है.
सॉरी देती है। चुपको फोर्सफुली हैंड्स ओवर नतालिया's हैंड टू हिम एंड गिव्स हिम ब्लेसिंग एंड आस्क देम टू किस। ओके, तो चुपको अभी बहुत ही तंग हो गया, तो इसीलिए वो क्या करता है, वो अपनी बेटी के हाथ लेकर लमो के हाथ में दे देता है और बताता है आपस में किस करने के लिए। आफ्टर रिगेनिंग हिज सेंसेस ही एक्सप्रेसेस हिज एक्साइटमेंट एंड किसेस। तो अभी वो जो बेहोश था लमो, वो होश में आ गया, अभी बहुत ही एक्साइटेड है एंड ही किसेस नतालिया's हैंड। नतालिया being again keeps convincing him that squeezer is better than yes। ओके, अभी भी नतालिया क्या बता रही है, मेरा स्क्वीज़र ही आपके गस से अच्छा है, डॉग की आर्ग्यूमेंट चल रही है। बट लमो बीइंग एडमेंट रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट इट एंड द क्वारलिंग कंटिन्यूस। अभी भी लमो बहुत ही एडमेंट है, एरेगेंट है, इसीलिए वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए उनकी क्वारल कंटिन्यू होती है। तो इसका कंक्लूजन कैसे है, द ड्रामा डिस्प्लेज the greed of rich families to marry their children into other wealthy families with the aim of enhancing their wealth। तो ये ड्रामा में हमें इतना ही समझना है कि आपस में बहुत ही केमिस्ट्री कुछ नहीं है, फिर भी उनका वेल्थ बढ़ाना है। दो वेल्थी फैमिली का जब वो कंबाइंड टाइम में आ जाएंगे, उनकी वेल्थ और भी बढ़ेगी। तो ये सोसाइटी में हो रही है और ये ड्रामा ने इस थॉट को अच्छी तरह डिस्प्ले किया है। ओके, थैंक यू।